Good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and everybody is fine at home. Children, the topic which I am going to teach you today is the revision of the chapter Methods of Psychological Inquiry. These days we are doing the revisions. In that term, I'm going to teach you about the experiment method. So my topic of today is the experiment method. Children, you have studied about this method already. But when we come to the part of the experiment, the word experiment is very much closely related to the field of psychology. As psychology is considered as a science and it is a scientific method, so everything was based on science, scientifically. So in that term, experiment method is basically a method which study any kind of behavior in a controlled laboratory setting. Whatever the behavior we learn, we apply some statistical techniques as well as we study any kind of particular behavior in a controlled laboratory setting. If we talk about this method talks about the cause and effect relationship between two variables. Basically, one will be the cause and another will be the effect. And what is the effect of cause on the effect? This is only we studied in the experiment method. So, experiment method, children, basically is a cause and effect relationship between variables. Cause and effect relationship. What is the between cause and effect relationship between two variables? Two variables हम लोग लेते हैं इसमें. Here the word term the variable. So what is variable? So children, variable is an event or activity or anything which varies. जो vary करता है उसे हम लोग variable कहते हैं. But the most important thing and the most important point which all you should know is that the particular stimulus is not a variable, but the stimulus characteristics is a variable. For example, this marker is not a variable, but the marker's characteristic like its color, its size, its shape, it is a variable because it changes. This marker will doesn't change, but इसका कलर चेंज हो सकता है, इसके शेप में चेंज आ सकता है, इसके साइज में चेंज आ सकता है. So the characteristics of a particular stimulus, particular object, particular person is known to be as variable. So basically in the experiment method, we take two variables and one will be the cause and another will be the effect. एक cause होता है और एक effect होता है और जिसका effect हम लोग देखते हैं. Now, when we come to the part of the definition of the experiment method, the experiment method is a method which study the relationship between cause and effect between two variables. It is a method which determine the relationship between the two variables. So this is about the experiment method, and now we are going to discuss about the variable. So when we come to the part of variable, we already discussed with you that what is the meaning of variable. Now what are the types of variable? Variables के types क्या होंगे? ठीक है? तो first type अभी हमने discuss किया is the IV. First type is the IV. Okay? Second type is the DV, and third type is the RV.
So these three types of variables were there. One is IV, one is DV, one is RV. IV full form is independent variable. DV full form is dependent variable. RV full form is relevant variable. And this also known as relevant variables का एक alternative name है which is known as extraneous variable. Okay, EV, extraneous variable. Now let us define each of them one by one. What is IV? IV independent variable is a variable which is the cause. ये cause होता है, ठीक है. IV जो होता है ये cause होता है और DV जो होता है ये effect होता है. IV independent variable is a variable which can be manipulated by the experimenter. But basically they're trying to say that IV को मैनिपुलेट किया जा सकता है बट DV को मैनिपुलेट नहीं करते हैं. यानी कॉज जो है उसको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं. मैनिपुलेट करने का मतलब हम उसे चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बट DV को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि DV जो होता है वो इफेक्ट होता है और कॉज को चेंज किया जा सकता है बट इफेक्ट नहीं चेंज कर सकते. So independent variable is a variable which is manipulated by the experimenter, and dependent variable is not manipulated by the experimenter, and DV is the effect of that particular cause. DV is the effect of the IV. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक हाइपोथेसिस हम आपको दें लाइक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एनहांसेस द चाइल्ड्स ग्रोथ. मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया दैट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एनहांसेस द चाइल्ड ग्रोथ. ठीक है. तो 1 इसमें IV हो जाएगा यानी पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप और DV क्या हो जाएगा, ग्रोथ. तो ये हम देखेंगे कि जितना अच्छा पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप है उतना ही अच्छा बच्चे का ग्रोथ हो रहा है. जितना अच्छा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है उतना ही अच्छा पेरेंट बच्चे का ग्रोथ हो रहा है. तो IV और जितना ही बेकार पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है द मोर गुड द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप द मोर गुड विल बी द चाइल्ड्स हेल्थ और चाइल्ड्स anything, okay, child's health, and the less will be the parent child relationship the lesser will be the child health. तो एक कॉज है और एक इफेक्ट है. एक कॉज है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जिसका इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं चाइल्ड के हेल्थ पे. ठीक है. तो कॉज चेंज हो सकता है बट इफेक्ट जैसे चाइल्ड हेल्थ हमें देखना है तो हम कॉज तो चेंज कर सकते हैं. लाइक हम कॉज कोई भी ले सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हेल्दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ही लें, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है. आई होप दिस ऑल थिंग्स आर अंडरस्टैंड टू यू. आप समझ रहे हैं. यानी IV चेंज नहीं, IV को चेंज कर सकते हैं बट DV जो चेंज नहीं होता. अब आते हैं हमारा थर्ड वेरिएबल जो कि है रिलेवेंट वेरिएबल जिसको एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी कहते हैं. एक्सट्रेनियस वेरिएबल से बच्चों समझ में आ रहा होगा समथिंग विच इज एक्सटर्नल. कोई ऐसी चीज़ है जो बाहर से अफेक्ट कर रही है, एक्सटर्नल है. ठीक है. तो ऐसे वेरिएबल क्या होते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं. जैसे कभी कभी आपके एक्सपेरिमेंट को कुछ फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं तो उन्हें हम कंट्रोल करते हैं. तो बेसिकली जो RV या EV होता है इसे हम लोग कंट्रोल करते हैं एक्सपेरिमेंट में. ये हमारा काम होता है इसको कंट्रोल करना. ठीक है. ताकि इनका इफेक्ट हमारे एक्सपेरिमेंट में ना दिखे क्योंकि बेसिकली हमें IV की इफेक्ट DV पे देखनी है. बेसिकली वी हैव टू सी द IV इफेक्ट ऑन DV. ऐसा ना हो कि रिलेवेंट वेरिएबल का इफेक्ट DV पे आए. तो हमें IV का इफेक्ट DV पे देखना है, ये नहीं देखना है कि रिलेवेंट वेरिएबल का इफेक्ट DV पे आए. सो आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सपेरिमेंट मेथड. व्हाट इज एक्सपेरिमेंट मेथड, what is variable, what are the types of variable, IV, DV and RV. Basically RV relevant variables are those variables which affect the experiment from outside and they are need to be controlled during the experiment. We have to control them. हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें कंट्रोल करते हैं ताकि वो हमारे एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट ना करें.
ठीक है बच्चों, अब आपको ये भी जानने वाली बात है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम कोई दो ग्रुप बनाते हैं। हम क्या करते हैं, दो ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, कौन से दो ग्रुप हम लोग बनाते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, ग्रुप इसलिए बनाया जाता है, वन इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड अनदर इज कंट्रोल ग्रुप। One is experimental group and another is control group। ओके, ये दो तरीके के ग्रुप बनाए जाते हैं। आपको मालूम है कि ये ग्रुप क्यों बनते हैं? इनका मेन मोटिव होता है बनने का क्योंकि ये कंपैरिजन के लिए बनते हैं। बेसिकली जब हमें कोई कंपैरिजन करना होता है किसी ग्रुप को लेके तो हम दो ग्रुप बनाते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिसमें हम कोई भी वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं करते। आप डेफिनेशन में लिख सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज अ ग्रुप इन विच रेलेवेंट वेरिएबल्स आर नॉट कंट्रोल। ओके, बट कंट्रोल ग्रुप इज अ ग्रुप, नाम से ही पता चल रहा है, इन विच द रेलेवेंट एंड द एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर कंट्रोल्ड। एक ग्रुप होता है जिसमें हम लोग कंट्रोल नहीं करते और फिर देखते हैं आईवी का क्या इफेक्ट पड़ा है डीवी पे या कैसे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और एक ग्रुप होता है जिसमें कि हम आरवी को कंट्रोल करके रखते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, आईवी का इफेक्ट क्या पड़ रहा है डीवी पे, या व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट इज गोइंग ऑन। आफ्टर लुकिंग टुवर्ड ऑल दीज थिंग वी कम टू द कंक्लूजन कि हाँ, बेसिकली हम लोग इससे क्या होता है कि एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ये हुआ और कंट्रोल ग्रुप में ये हुआ। तो ग्रुप बेसिकली बनते हैं फॉर द कंपैरिजन। नाउ आपको इसमें टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट भी पढ़ना है। लाइक ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट मेथड का ही पार्ट है बच्चों। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड क्वासी एक्सपेरिमेंट। दो तरीके के एक्सपेरिमेंट के टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है फील्ड और दूसरा होता है क्वासी। एक होता है फील्ड एक्सपेरिमेंट, एक होता है क्वासी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फील्ड एक्सपेरिमेंट भी आपको कुछ नाम से समझ में आ रहा होगा कि वो एक्सपेरिमेंट जो कि फील्ड में हो रहा है, नेचुरल सेटिंग में हो रहा है और कंट्रोल्ड लेबोरेटरी सेटिंग में नहीं होता है। द रिसर्चर particularly go to a particular field or particular area where they have to research about. For example, if they have to see what is the effect of the playground on the child's sportive performance, okay, they have to see the effect of ground। अगर मतलब बच्चों को प्ले ग्राउंड मिलता है तो उसका क्या इफेक्ट मिलता है। मीन्स दो चीज़ें हमें पढ़नी है और या तो रिसर्च करनी है कि उन बच्चों को जिनको प्ले ग्राउंड नहीं मिल रहा है उनके स्कूल में, और वहीं कुछ बच्चे हैं जिनको प्ले ग्राउंड अवेलेबल है, तो उसके लिए पर्सन फील्ड एक्सपेरिमेंट कर सकता है। कोई दे कैन लाइक विजिट टू डिफरेंट स्कूल्स, they can go to school one by one। आप कुछ स्कूल्स को विजिट कर सकते हैं in order to see these kind of differences। सेकेंड कैटेगरी होती है क्वासी की। क्वासी मीन्स होता है कि इफ की बात हो रही है, तो क्वासी में बेसिकली क्या होता है, हम लोग आर्टिफिशियल सेटिंग करते हैं। ठीक है, उसी तरह का सेटअप हम लोग अपने लैब में क्रिएट करते हैं। That is known as quasi experiment। Basically, if it is not possible to go on the field पे जाना अगर possible नहीं है, तो what we do, we use the method of quasi experiment। कभी कभी फील्ड पे नहीं जा सकते तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये जानना है, आप सभी को समझ में आ गया होगा आई थिंक बच्चों।
field experiment, quasi experiment, experimental group, control group, variables. Okay, one more thing I want to add in this one as an example, which is also given in your book NCERT. Like for example, anyone wants to see what is the effect of earthquake. Earthquake is considered as a natural disaster. So what is the effect of earthquake on the mental status of the person? Okay, what is the effect of the earthquake? Earthquake का क्या effect पड़ेगा person के behavior पे, ठीक है, या पर्सन के मेंटल स्टेटस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी स्टडी करने के लिए यू कैन कॉल सम ऑफ द पर्सन हु हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सच वन एंड हु हैव गो थ्रू दैट काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर. तो उनकी इंटरव्यू लेने पे, उनके स्टडी करने पे भी यू विल बी एबल टू नो मेनी थिंग्स मोर बेटर. ओके, आप जान सकते हो. तो ये है एक्सपेरिमेंट मेथड. ओके, आगे बढ़ते हैं. हम लोग को इसमें वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में. जैसे कि फॉर एग्जांपल आरवी के बारे में आपको पढ़ना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आरवी एंड व्हाट आर द टेक्निक्स टू कंट्रोल द आरवी. कौन से टेक्निक हैं जिससे कि हम आरवी को कंट्रोल कर सकते हैं. तो सबसे पहले आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलेवेंट वेरिएबल. If we come to the part of types of relevant variable, so there are three main types of relevant variable. First is situational, okay, then is sequential, and then is organismic. So basically ये थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल रिलेवेंट वेरिएबल होते हैं जो आपके एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट करते हैं, जो आईवी का इफेक्ट डीवी पे नहीं देखने देते, और दे आर कंटिन्यूसली इंटरप्ट द experiment, and as a result it can be find out that it can be happen that person is not able to see the effect of IV. इनका effect दिख जाता है DV पे. These their effects are shown on the DV. So in order to avoid this one, there are some techniques also to control the RV. कुछ टेक्निक्स भी हैं जिससे कि आरवी को कंट्रोल किया जा सकता है. तो वो टेक्निक्स भी हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. व्हाट इज सिचुएशनल वेरिएबल, व्हाट इज सिक्वेंशियल एंड व्हाट इज ऑर्गेनिस्मिक. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेवेंट वेरिएबल. सो दीज आर द थिंग्स. अगर हम इन्हें समझेंगे, तो सबसे पहले अगर मैं ऐसे चलूँ फ्रॉम बॉटम टू टॉप, organismic variable. Organismic variable is derived from the word organism. Organism means the human being, the living being. उसे हम लोग organism कहते हैं, ठीक है. organism, the living being. तो उनके भी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट करते हैं. ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल यानी ऑर्गेनिज्म के भी फैक्टर्स हैं जो कि आपके एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनिज्म का खुद का इंटेलिजेंस लेवल, पर्सनालिटी लेवल, मीन्स देयर आर सो मेनी साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच अफेक्ट द एक्सपेरिमेंट. So it is very important, it become very important that they need to be controlled. उन्हें कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट कम द सिक्वेंशियल वेरिएबल. सिक्वेंशियल वेरिएबल जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सपेरिमेंट सीक्वेंस में हो रहा है एंड इफ दे आर कमिंग इन अ कंटिन्यूसली, not on any gap, not on any interval, if they are coming continuously,
So that come under the sequential variables. So due to that, what are the things arises in the person? The things which arises in the person is fatigue, tiredness, a kind of tiredness, a kind of mental stress. तो ये चीज़ें होती हैं सिक्वेंशियल वेरिएबल, तो उन्हें भी अफेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि जो पर्सन की फटीग है, टायर्डनेस है, उनका इफेक्ट डीवी पे पड़ने लगता है, या पर्सन की जो इंटेलिजेंस है या उसकी खुद की पर्सनालिटी है, इंटरेस्ट है, उनका इफेक्ट डीवी पे पड़ने लगता है. So basically but in the experimental method we have to see the effect of IV on the DV, not the RV's effect. हमें RV का इफेक्ट नहीं देखना होता है डीवी पे, हमें किसका इफेक्ट देखना होता है, हमें IV का इफेक्ट डीवी पे देखना होता है. तो ये देखने के लिए हम लोग RV को कंट्रोल करते हैं. ठीक है. So this term the organismic equation. Situational variables are those variables which are related to the environment, which are related to the physical environment of the person. जैसे कि noise level, temperature, okay, तो उन्हें भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है. Like when you write down your practical, when you write down your experiment method, you also have written somewhere about precaution. आप लोग precaution लिखते हो उसमें, जिसमें आप लिखते हो कि adequate light should be there, normal temperature should be there, noise level should be controlled. ठीक है, लाइट, टेम्परेचर, नॉइज, इन सब का हमें ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी इनका भी इफेक्ट जो है डीवी पे दिखने लगता है. और बेसिकली एक्सपेरिमेंट मेथड का मतलब ही होता है वी हैव टू सी द इफेक्ट ऑफ आईवी ऑन द डीवी, नॉट द रिलेवेंट वेरिएबल ऑन द डीवी. सो दे नीड टू बी वेरी मच कंट्रोल. सो इसीलिए समटाइम इन ऑर्डर टू मेक अ कंपैरिजन, अगर हमें कंपैरिजन करना होता है तो हम लोग 2 ग्रुप बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, जिसमें कंट्रोल ग्रुप में हम लोग सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं, बट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं. ठीक है. इसका रीज़न यही होता है कि हम लोग फिर कंपैरिजन कर पाते हैं. तो आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ रिलेवेंट वेरिएबल. ये सारे टाइप्स होते हैं, सिचुएशनल वेरिएबल होते हैं, कुछ सिक्वेंशियल होते हैं, ऑर्गेनिस्मिक होते हैं. अब हमें ये जानना है कि क्या टेक्निक्स हैं, कैसे ये वेरिएबल कंट्रोल हो सकते हैं. तो व्हाट आर द टेक्निक्स टू कंट्रोल द रिलेवेंट वेरिएबल, दिस वी हैव टू स्टडी अबाउट. Techniques to control relevant variables. Relevant variables को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक्स क्या है. तो सबसे पहले टेक्निक आता है बच्चों, टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन. टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन नाम से आपको कुछ पता चल रहा होगा. एलिमिनेशन मीन्स ऐसा कुछ जो रिमूव करना, हटाना. ठीक है, एलिमिनेट करना. तो टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन में बेसिकली यही करते हैं कि पूरी कोशिश ये रहती है कि जो आरवी है उसको पूरी तरह से हटा दें. ठीक है. अगर आप चाहते हो कि आईवी का इफेक्ट डीवी पे पड़े, आरवी का इफेक्ट ना पड़े डीवी पे, तो यू हैव अ चॉइस दैट एदर यू completely eliminate the relevant variable from your experiment. But yes, it is true, I totally agree with you all that sometimes it is not possible to completely eliminate the RV. कभी कभी पॉसिबल नहीं होता कि हम RV को completely eliminate कर दें. तो in that case we have to go for some other techniques. तो हम लोग को उस केस में क्या होता है, कुछ और भी टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड राइट इट डाउन हियर व्हाट आर द टेक्निक्स. टेक्निक्स हैं क्या. तो सबसे पहला तो मैंने बताया एलिमिनेशन टेक्निक. एलिमिनेशन टेक्निक के बाद आता है मैचिंग टेक्निक. मैचिंग के बाद है आपका बैलेंसिंग टेक्निक. बैलेंसिंग के बाद है काउंटर बैलेंसिंग. और नेक्स्ट है रैंडमाइजेशन. ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं.
एलिमिनेशन, मैचिंग, बैलेंसिंग, काउंटर बैलेंसिंग, रैंडमाइजेशन। ठीक है, ये सारे टेक्निक्स हैं टू कंट्रोल द रिलेवेंट वेरिएबल। फर्स्ट है एलिमिनेशन। हम कभी एलिमिनेशन का आप यूज कर सकते हैं लाइक ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल्स को तो नहीं एलिमिनेट कर सकते हैं, सिक्वेंशियल को भी नहीं एलिमिनेट, सिचुएशनल वेरिएबल्स को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो हर एक टेक्निक जो है हर एक वेरिएबल पे भी वर्क करती है, तो ये भी हमें जानने वाला पॉइंट है। एलिमिनेशन जैसे कि तुम्हारा सिचुएशनल वेरिएबल पे वर्क कर रहा है। ठीक है, सिचुएशनल, जैसे सिचुएशनल वेरिएबल क्या क्या है, जैसे नॉइज लेवल, टेम्परेचर, इनको आप पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हो। लाइक नॉइज लेवल को कंट्रोल रखो, तो ऐसे रूम में आप एक्सपेरिमेंट करो जो कि नॉइज फ्री हो। टेम्परेचर रेगुलेट आप कर सकते हो, ठीक है, लाइट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये इन चीज़ों को एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सिचुएशनल वेरिएबल्स के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। इनके बाद है मैचिंग टेक्निक जो है वो ऑर्गेनिस्मिक के लिए बहुत यूजफुल है। मैचिंग टेक्निक जो है ये ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल के लिए यूजफुल मानी जाएगी। ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल वो वेरिएबल जो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं, जैसे पर्सन की इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि ऐसे पार्टिसिपेंट्स ने मैचिंग टेक्निक में समथिंग which match the two things. ठीक है, elimination means completely making them devoid of the experiment, and matching means making them matching with the pair. तो ये सिचुएशनल ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल में जैसे कि ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका इंटेलिजेंस, उसकी पर्सनैलिटी, तो ये कर सकते हैं कि हम लोग एक ही तरह के इंटेलिजेंट जिनकी IQ सेम है उन्हीं को रखें, या जिनकी पर्सनालिटी या इंटरेस्ट एक जैसी है, एप्टीट्यूड है, तो उनको एक कैटेगरी में रखें। तो इससे क्या होगा, सिर्फ आईवी का ही एफर्ट डीवी पे दिखेगा, आरवी का एफर्ट डीवी पे नहीं दिखेगा। ठीक है, उसके बाद है बैलेंसिंग टेक्निक भी आप कह सकते हो कि इट इज यूजफुल इन द रैंडमाइजेशन। तो टेक्निक होता है जिसमें कि रैंडमली आप चूज करते हो, रैंडम टेक्निक, रैंडम पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। एंड काउंटर बैलेंसिंग बेसिकली सिक्वेंशियल वेरिएबल्स के लिए यूज होता है। सिक्वेंशियल यानी जिसमें कि टायर्ड हो रहे हैं, फटीग हो रहे हैं, ठीक है, उसके लिए यूज होता है सिक्वेंशियल वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, सिक्वेंशियल, ऑर्गेनिस्मिक, सिचुएशनल, सिक्वेंशियल, जैसे कि टायर्ड हो रहा है, फटीग हो रहा है, तो काउंटर बैलेंसिंग में क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ऑर्डर में चेंज लाते हैं, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इन केस आप किस ऑर्डर में इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने एक्सपेरिमेंट को सब्जेक्ट से, अगर आप ए बी ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो काउंटर बैलेंसिंग में हम सीक्वेंस चेंज कर देते हैं ताकि उसका कोई फटीग ना हो, पर्सन को कोई टायर्डनेस ना हो, और ना ही कोई बॉर्डन हो। बॉर्डन भी आता है सिक्वेंशियल वेरिएबल में, तो ये कर सकते हैं ए बी दे दिया, फिर बी दे दिया, फिर ए दे दिया, फिर उसके बाद ए दे दिया, देन बी दे दिया, बी दे दिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बेसिकली सीक्वेंस जो है वो चेंज करते हैं in order to remove the tiredness of the person or subject, in order to remove the fatigue of the person or subject, or the fatigue, tiredness or the boredom. तो ये सारे कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे हम आरवी को कंट्रोल कर सकते हैं। So I hope children you all understand about the experiment method properly. Now as a quick review, what are the things you all have to study in this one? First of all, you will describe about what is experiment, what is the meaning of experiment, concept of variable, okay, what is variable, then what are the types of variable I discussed with you, independent variable, dependent variable, relevant variable, then what are the types of relevant variable, what are the techniques to control the relevant variable,
the two type of group which you all made, that is the experimental group and the control group. Then you will study about the types of experiment, which is the field experiment and the quasi experiment. तो ये सारी चीजें हम लोग एक्सपेरिमेंट मेथड के अंडर ही आता है. Now you can describe this method with an example also. You can make a hypothesis. आप एक hypothesis बना के आप उस पे based करके example के through भी आप इसे explain कर सकते हो. It always come in your long answer type question. So be prepared yourself for this method. Still, if you feel any doubt regarding this topic, ask to me in the classroom. Here I can say that thank you so much for carefully observing this video, and student, it's my suggestion, keep watching the videos आप सभी देखते रहिए बेटा. Thank you once again.